Okay, now, so depreciation, always remember depreciation provided on assets only on deemed building. अब लास्ट में हम लोग मेरे ख्याल से इसी पैराग्राफ पर आ गए थे. Exception to condition that assessee must be owner to claim depreciation. Very obvious, huh? But there are certain deeming provisions also. याद करो house property chapter deemed ownership. If you are a deemed owner, then also depreciation is allowed. कोनो मोबाइल से. Okay. Even assessee occupies a building for purpose of business profession as a tenant. Very obvious. Tenant अगर आप हो, you are not a leasee, you are a tenant. Then depreciation is not allowed. Incurs any capital expenditure by doing any construction, extraction, improvement, then such capital expenditure shall be treated as his own building and depreciation shall be allowed. हाँ, वो बात है कि अगर वो कुछ capital करता है और वो capital expenditure no doubt as a tenant होकर भी not allowed in the P&L account, then he can claim in the asset side and can claim depreciation on that, but not as a owner. He will be a deemed owner. Always remember block of asset. मैंने आपको कहा था name common, rate common block. Okay, name common, rate common block. Always remember this. I will try to confuse you, but अभी पहले याद रखना name common, rate common block. Block of asset means group of assets falling within class of assets comprising tangible assets. Now there are only three groups of tangible assets. That is your building, plant and machinery साथ में है हमारे लिए, and furniture. So there are three blocks. That is your block number 1 building, block number 2 for furniture, and block number 3 for plant and machinery. And the fourth block belongs to intangible assets. That is your fourth number block. ओके, याद रखना आप लोगों के लिए हम लोगों ने वेराइटीज ऑफ ब्लॉक बनाकर दिए हुए हैं. जैसे अगर मैं एग्जांपल के लिए आपको मैं अगर ऐसा दे दूं, दैट इज यूर, एक मिनट, अब ये स्क्रीन भी शेयर कर देता हूं मैं साथ में. ओके, फॉर एग्जांपल याद रखना है डेप्रिसिएशन के लिए ब्लॉक ऑफ असेट्स जो है हमारे पास है. अरे आपको क्या होता है आनंद? हाँ, ब्लॉक ऑफ असेट्स जो है हमारे पास, दैट इज यूर, देर आर मेन 4 ब्लॉक्स. ऑलवेज रिमेंबर देर आर ओनली 4 ब्लॉक्स. That is your tangible assets have a building, next have your furniture, next is your prime minister, and last is your intangible assets. Okay, बहुत अच्छी बात यह है कि इंटेंजिबल असेट में कोई झंझट नहीं है. फ्लैट रेट 25% इज एप्लीकेबल. बट इन द बिल्डिंग यू हैव अनदर 3 blocks. That is your 5%, 10%, and 40%. In furniture, you have only single block of 10%. But in plant and machinery, there are varieties of blocks. Ranges from your 10%, 15%, 25%, 30%, 40%. Maximum block is 40%. There are varieties of blocks. Now you can say it as कि हमारे पास में जरूर 4 मेन ब्लॉक्स है: बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, इंटेंजिबल असेट. बट इन द इंटेंजिबल असेट्स आल्सो डजंट हैव सब ब्लॉक्स, बट बाकी के लिए बहुत सारे ब्लॉक्स हैं. अब जिसका नेम कॉमन, रेट कॉमन ब्लॉक हो जाएगा. ऑलवेज रिमेंबर नेम कॉमन, रेट कॉमन ब्लॉक. अगर मैं ऐसे एग्जांपल के लिए दूं कि फॉर एग्जांपल लैपटॉप इज अ प्लांट एंड मशीनरी. ओके, ध्यान देना, लैपटॉप इज अ प्लांट एंड मशीनरी. On laptop, depreciation will be allowed at 40%. Okay, always remember laptop is a plant and machinery, depreciation is allowed at the rate 40%. वैसे हम लोगों के लिए एसी भी क्लास के लिए प्लांट एंड मशीनरी है. इट इज नॉट अ फर्नीचर. एसी, आई एम टेलिंग अबाउट द एसी. बट एसी जो है वो प्लांट एंड मशीनरी है. इट इज नॉट कवर्ड अंडर 40%, इट इज कवर्ड अंडर 15%. Now the name of the property is a plant and machinery. दोनों प्लांट एंड मशीनरी है, पर एक 40 में बिलोंग करता है, एक 15 में बिलोंग करता है, तो दोनों का मिक्सिंग नहीं होगा, ब्लॉक नहीं बनेगा. ओके, बट फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसा कहूं कि अगर जो है एसी अगर 15% में है और प्रोजेक्टर मेरे लिए 40%, 15%, projector whether it will be in a plant and machinery of a 15% block or 40% block. Why 40%? So
એનો 15 માં લો કે 40 માં લો? 40 માં. શું કામ? પ્રોજેક્ટર તો અહીંયા જ છે, તમે એના ઉપર તો બધું વાંચી રહ્યા છો. ડિટેચેબલ જેવો તો કન્સેપ્ટ જ નથી. પાછળ પાણીના જાર રાખે છે, પણ ફિલ્ટર પ્લાન્ટ છે કે એમાં? ફિલ્ટર પ્લાન્ટ છે ને ઊંધું રાખીને? ના, ખાલી જાર છે. બટ ઘણી જગ્યાએ પાણીના ફિલ્ટર પ્લાન્ટ પણ હોય છે. વેધર ઇટ ઇઝ અ પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી ઓર ફર્નિચર? મેન્યુફેક્ચર કરે છે. તો પછી બોલો, હવે આપણે કોસ્ટિંગ કરીએ છીએ અને કંટ્રોલ ક્યાં કરવાનો એ જ ખબર નહીં. અહીંયા પડદા લગાડ્યા છે, કર્ટન્સ. કર્ટન્સ ફર્નિચર છે કે જે છે એક્સપેન્ડિચર છે? ફર્નિચર છે, એક્સપેન્ડિચર છે. બાપરે, કેટલું કન્ફ્યુઝિંગ છે ને जीवन. द सेम थिंग जो मैंने बहुत इनिशियल में, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ रेवेन्यू एंड प्लांट एंड रेवेन्यू एंड कैपिटल, दैट इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज डेप्रिसिएशन इज अलाउड ऑन ओनली कैपिटल, डेप्रिसिएशन इज नॉट अलाउड ऑन रेवेन्यू. अगर आप ये कहोगे कर्टन मेरे लिए असेट है तो फर्नीचर में डालना पड़ेगा, तो भैया 10% ही मिलेगा, ज्यादा कुछ मिलेगा ही नहीं तुझे. तो चलो ना, हम ऐसा क्लेम करते हैं, सर हमें तो ये निकाल कर हर 3 महीने में हम बदलते हैं कर्टन, भले 5,000 10,000 20,000 का खर्चा है, हम बदलते हैं. ओके बॉस, खर्चा अलाउड, यू आर नॉट गोइंग टू क्लेम डेप्रिसिएशन. बट जब बात आती है कि डेप्रिसिएशन क्लेम करना है आपको प्रोजेक्टर पर, तो हम ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि वेदर इट इज अ रेगुलर प्लांट एंड मशीनरी दैट इज कवर्ड अंडर 15% और वेदर इट इज 40%. अगर हम गलती से 40% क्लेम कर ले तो जितना डिप्रिसिएशन ज्यादा, नेट प्रॉफिट कम, जितना नेट प्रॉफिट कम उतना टैक्स कम. वेरी ऑब्वियस. इनकम टैक्स ऑफिसर विल कॉल यू बैक. वो बुलाकर कहेगा भैया डिप्रिसिएशन कैलकुलेट किया, ब्लॉक ऑफ एसेट बताओ कौन से है. हमने भी बैलेंस शीट में से लिस्ट बना कर दी, सर ये सारे ब्लॉक ऑफ एसेट है, लो डिप्रिसिएशन क्लेम किया. वो बोलेगा भैया प्रोजेक्ट पर 15 क्लेम करना था, 40 लिया क्यों? तो तुमने 40 लिया और जबकि होना चाहिए था 15, तो 25% ज्यादा बताए ना खर्चा. हाँ, तो हटाओ वो खर्चे को, प्रॉफिट बढ़ाओ, टैक्स बढ़ाओ, विद पेनल्टी के साथ भरने हो. नाउ द गेम स्टार्ट्स. वो कहेगा कि ये अलाउड नहीं है, आपको बोलना है सर ये 40 में ही अलाउड है. देन हाउ विल यू प्रूव दैट वेदर इट इज इन 40 और वेदर इट इज इन 15? નાउ મેં તમને લિંક આપી હતી, પણ તમે લિંક પર કદાચ ધ્યાન દીધું નથી, કેમ કે કદાચ તમારા 12 વાગ્યા છે હજી તો, એટલે હમણાં 12 વાગે ચાલે છે ને. वापस लिंक देता हूँ, ठीक है, चलो व्हाट्सअप करता हूँ लिंक. मैंने क्या कहा, 40% में किसका एग्जांपल दिया मैंने? लैपटॉप का दिया. क्या लैपटॉप के साथ मेरा प्लांट वो एसी कनेक्टेड है? प्रोजेक्ट मेरे लैपटॉप के साथ कनेक्टेड है? क्या ऐसे चलने वाला है वो? मैंने ऐसा कहा कि चलो एक बटन दबा दिया, कुछ भी आ रहा होगा वहां पर, ऑटोमेटिक चल रहा है, ऐसा होने वाला है कभी? देन यू हैव टू प्रूव इट कि सर प्रोजेक्टर इज कंपल्सरीली कनेक्टेड विद द लैपटॉप. इफ देर इज नो लैपटॉप देर इज नो क्वेश्चन ऑफ यूजिंग प्रोजेक्टर. So for this classes, projector is a asset which is covered under 40% of the block. You have given a satisfactory answer. Satisfaction हो गया. डकार आ गई. अब हम टैक्स आपको दे दे, डिडक्शन करते हैं. ओके, सो इन शॉर्ट यू हैव टू प्रूव इट. नाउ नेम कॉमन, रेट कॉमन, ब्लॉक. तभी भी पॉइंट ये आकर खड़ा है कि जो फिल्टर प्लांट अगर वाटर बॉटल के नीचे रखा होगा, वेदर इट इज अ प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर. જ્યારે હું કોઈના ક્લાયન્ટના મારા કામમાં બધી જ વસ્તુ હું સર્વે કરું, એમના ઓફિસમાં જાઉં, એક એક નજર બ્યુટી પાર્લર વાળા મારા પાસે કામ માટે છે, હું એ જોવા જાઉં કે તમારા પાસે ઓલું માથામાં ગરમ કરવાનું ઓલું છે, આ છે. યસ, આઈ હેવ ટુ, બીકોઝ ઇટ ઇઝ માય ડ્યુટી. અગર જેન્ટ સલૂન હોય તો કેટલા એ લોકો પાસે તો આ છે, ધેટ ઇઝ યુઅર મશીન્સ છે, બધા જ મારે કાઉન્ટ કરું. બીકોઝ ઇટ ઇઝ માય ડ્યુટી કે મારે ક્યાં ડેપ્રિસિએશન ક્લેમને ફાયદો લેવાનો બતાવવાનો હશે એટલું બતાવીશ, નહીં બતાવવાનું છોડી દઈશ. પણ ઇટ ઇઝ માય ડ્યુટી કે મારે લિસ્ટ બનાવવી પડશે. તો જ્યારે હું ત્યાં ગયો અને મને ખબર પડી પાણીનો ફિલ્ટર પ્લાન્ટ રાખ્યો છે, વેધર આઈ કાઉન્ટ ઇટ એઝ અ ફર્નિચર ઓર પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી. ઇફ આઈ કાઉન્ટ ઇટ એઝ અ ફર્નિચર, only depreciation is 10%. But if I consider it as a plant and machinery, then I have a varieties of ranges. Then I can say that कि सर वो पानी है, लेकिन पानी ठंडा और गर्म करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टेड रखनी पड़ती है. इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टेड रखना है तो फर्नीचर नहीं है सर मेरे लिए, आप उसे प्लांट एंड मशीनरी में गिनिए तो 15%.
हाँ, ओके, डेप्रिसिएशन, बिकॉज क्लेमिंग डेप्रिसिएशन इज अ मैंडेटरी प्रोविजन। पर मन में आया डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकते हो। ओके, ये याद रखना है। सो नाउ पॉइंट इज व्हाट, नेम कॉमन, नेम मतलब टाइटल पर मत जाना कि भाई नेम मतलब कि एसी 15% है और वाटर फिल्टर का प्लांट भी जो है वो 15% है, पर सर नाम का कॉमन है। भाई कॉमन है प्लांट एंड मशीनरी, फिर बस प्लांट एंड मशीनरी में बैठता है तो 15 है, 10 है, 25 है, 30 है, नेम कॉमन, रेट कॉमन, ब्लॉक। ओके, डन, ऑलवेज रिमेंबर दिस, नेम कॉमन, रेट कॉमन, ब्लॉक करना है। ओके, सो नाउ देर आर मेन फोर ब्लॉक्स, फोर ब्लॉक में के सब कुछ हमारे पास सब ब्लॉक्स भी आएंगे, देखेंगे कौन से आते हैं, क्या है क्या नहीं है। आगे चलिए, अब थियरी पर फिर से आ जाते हैं, मैं इनको वापस से शेयर कर देता हूं, दैट इज योर, चलिए नाउ एडमिट, हेपी बेन देता रहता, हाँ। So now there are total four main blocks. That is your buildings, plant and machinery, and furniture, and your intangible. Now, in respect of which same percentage of depreciations are prescribed. Now, method of calculating depreciation. ये मैंने आपको शॉर्टकट में बता ही दिया था, मैं थोड़ा पढ़ इसलिए रहा हूँ क्योंकि इसका सम्स कंपलसरी है, और मैं एक दो सम सॉल्व करके बताऊंगा, आंसर मैच कर लिए, फिर आप लोग को होमवर्क करना आराम से, नो वरीज। Okay, चलिए, depreciation shall be calculated as per the method given under 43(6), which is as under WDV of the opening of the year. Always याद रखना opening में asset कौन सा, opening WDV, that is your cost plus depreciation till that date. अब भाई अब ये अकाउंटेंट को बता रहे हो आप कि opening WDV का मतलब पिछले साल का कॉस्ट माइनस अभी तक का जितना depreciation दिया, लो, यानी ज्ञानी को और ज्ञान दे रहे हो। Add actual cost of asset purchased and put to use during the previous year. The word used by the provision is put to use during the previous year. Imagine करो asset खरीद कर लाया लेकिन put to use नहीं किया तो depreciation is not allowed. Point is what, the provision which is used is as it is acquired during the year and put to use during the previous year. If it is not put to use during the previous year, asset में add हो जाएगा अगले साल depreciation, because depreciation starts as and when it is put to use. इसीलिए मैंने एक एग्जांपल कहा था कि अगर 50 लाख की मशीनरी खरीद कर लाया है, अगर हमने सितंबर में लाया है, अक्टूबर के 1 या 2 तारीख को भले आप एक सैंपल प्रोडक्ट निकाल कर चेक कर लो, जस्ट अ फॉर्मेलिटी, आपको 12 महीने का डिप्रिसिएशन मिल रहा है ना, कितना फायदा है बॉस। इमेजिन 50 लाख पर 15% भी आता होगा 12 महीने का, सीधा 7.5 लाख तो पीएनएल के डेबिट में गया काम। वही गलती से ईमानदारी रखने जाओगे और कहोगे कि सर हम तो दिसंबर से प्रोडक्ट चालू करने वाले, तब से हमने चालू किया है, सीधा 3.5 लाख रुपए डिप्रिसिएशन, प्रॉफिट उतना बढ़ गया। ओके, नाउ लेस अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फॉर असेट सोल्ड, डिमोलिश, डिस्ट्रॉयड, जो भी वैल्यू आएगी कंसिडरेशन इन कैश, नॉट इन एक्सचेंज ऑफ द असेट। असेट में आया तो असेट असेट में चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जब अगर मैं आपको ऐसा कहूं कि ओ माय गॉड में उसके शॉप गिर जाती है, टूट जाती है, और वो केस करते हैं, दैट इज ऑन भगवान पर, एंड खुद बेहोश होने के बाद में भगवान जो है कोर्ट में उनको दिला कर देते इंश्योरेंस क्लेम, एंड व्हेन इंश्योरेंस क्लेम इज रिसीव्ड, is your sale value received. This is what the sale value. But when it is received in money, not in kind, in money, जो भी पैसा आएगा वो माइनस कर दो, बैलेंस बच गया, क्लोजिंग WDV, एंड डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन क्लोजिंग WDV। ओके, अगेन पॉइंट टू पॉइंट मैं फिर कह रहा हूं, पुट टू यूज, अगर असेट पुट टू यूज नहीं किया, डेप्रिसिएशन भूल जाओ। Put to use does not mean making an asset regular to use, ready to use. Put to use means bringing an asset into actual use. This was decided by Bombay High Court in case of Dinesh Kumar गुलाबचंद अग्रवाल वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। अच्छा, यानी मारवाड़ी थे इसलिए अच्छा क्लेम करने की कोशिश कर रहे थे। Depreciation will be allowed even when asset is into passive use. For example, firefighting equipment installed but not used till there is actual fire shall be regarded as passive use of firefighting equipment. Depreciation will be allowed. हाँ, ये बात अच्छा एग्जाम्पल उन दिया। हमारे यहाँ पर भी फायर फाइटिंग इक्विपमेंट है, किसको चलाने आता है हम लोगों को इसमें से? अगर आग लग जाए तो बोलो कौन चलाएगा? एक ही आदमी है। जो आग लगाएगा वही बुझाएगा, ऐसे, ओके ठीक है। लेकिन इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छा जजमेंट है ये, पॉइंट इज वेरी गुड वन। क्या यानी ऐसा हो गया है कि हो सकता है कि अग्रवाल जी ने क्लेम किया होगा मैंने फायर फाइटिंग इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉल किए, ऑफिसर ने रिजेक्ट किया होगा। भाई असेट यूज ही नहीं किया तो डिप्रिसिएशन कहां से मांग रहे हो?
अरे बट सर क्या आग लगाऊंगा कि उसके लिए मैं यूज करने के लिए, वेरी ऑब्वियस इट इज अ पैसिव यूज। ओके, बट अगर आप कहोगे कि हमने जो प्रोजेक्टर खरीद कर लाया और हमने पैक पीस रखा है, अभी तक खोला ही नहीं है, तो फिर तो पुट यूज करो। ओके, ओके, नाउ यूज लेस देन 180 डेज, ये तो मैंने बहुत क्लियर कह दिया। इफ द एसेट इज एक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर एंड पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज इन दैट पीवाई, then depreciation in this regard will be allowed half of depreciation allowable। हाफ मतलब 50%, और 50% मतलब मैंने जो आपको कहा दैट इज 6 मंथ्स। ओके, मैं एक्चुअली 6 मंथ्स क्यों कहता हूं, उसका रीजन एक ही है, क्योंकि हमें 11th से एक की बात सिखाई जाती है, जितने महीने यूज करोगे उतने महीने का डेप्रिसिएशन। अगर 4 महीने यूज किया तो हम लोग करते थे 4/12 कर कर करते थे। ओके, टू रिकॉल दिस थिंग्स हम इस तरह से करते हैं। ओके, आई यूज अप असेट इन द नेक्स्ट ईयर। अच्छा समझो कि अगर किसी ने मार्च में असेट लाया और उसने चालू नहीं किया यूज करना, और उसने अगले साल वो भी समझो कि अक्टूबर के बाद यूज करना शुरू किया है। Now the asset was purchased in the last previous year and it is put to use in current previous year। तो भैया पिछले साल का ऐड हो गया, वो बैलेंस शीट में गया, इस साल डेप्रिसिएशन पहले दिन से मिलेगा। फिर हमें ये चिंता नहीं है कि आपने पुट टू यूज भले नवंबर दिसंबर में किया होगा, 6 महीने नहीं 12 महीने मिलेगा। द कंडीशन ऑफ 6 मंथ जो है वो कब देखोगे, इफ इट इज एक्वायर्ड इन अवर प्रीवियस ईयर एंड पुट टू यूज इन अवर प्रीवियस ईयर, बोथ कंडीशंस आर कंपल्सरी। ओके, हाँ, तो आगे, if any asset has been acquired in the previous year and has not been put to use during the same previous year, then cost of asset has to be added to value of block, but no depreciation shall be allowed on such asset। When such asset is put to use in next PY, then depreciation shall be allowed at full rate, that is 12 months in the PY when it is put to use, irrespective of number of days of put to use in that previous year। ओके, तो मैंने समझा ही दिया है ना, इन शॉर्ट मैंने आपको फॉर्मूला याद करा दिया है। करंट ईयर परचेस, करंट ईयर पुट टू यूज, तो हम कंपेयर करेंगे 179 डेज 180 डेज नहीं है करंट ईयर में पुट टू यूज, छोड़ दो, असेट जान दो, डेप्रिसिएशन जान दो। ओके, नेक्स्ट वन, सेल ऑफ असेट व्हेन द असेट इज ट्रांसफर्ड, याद रखना इट इज अ कैपिटल गेन। अगर आपने असेट बेचा है तो वो कैपिटल गेन है। अगर कैपिटल गेन है तो कैपिटल गेन का पॉइंट अट्रैक्ट होगा, बट उस कैपिटल गेन का इंट्रोडक्शन हम इस बार भी देखेंगे बिकॉज इट इज ऑलवेज शॉर्ट टर्म। तो देखते क्या दिया, इफ एनी एसेट हैज बीन सोल्ड मे बी डिस्कार्डेड ट्रांसफर्ड देन नो डेप्रिसिएशन शैल बी अलाउड फॉर दैट एसेट इन द ईयर इन विच सच एसेट हैज बीन सोल्ड। अगर आपने बेच दिया है, डिस्कार्ड कर दिया, डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, क्यों नहीं, सिंपल लॉजिक, 31 मार्च के आखिरी मिनट को असेट कहाँ था, नहीं था, डेप्रिसिएशन भूल जाओ, बात सीधा है। इन अदर स्टेज जो है जेरोक्स वाले ये कहते हैं कि हमारे 13 मशीनरीज खराब हो गए, हमने भंगार में स्क्रैप में दे दिया, वजन के भाव से दिया है, अब वो तेरा मशीन नहीं है, डेप्रिसिएशन उसका भूल जाओ। वो कहेगा सर मैं अगस्त तक तो यूज कर रहा था मैं, अकाउंटिंग विल अलाउ, इनकम टैक्स डजंट अलाउ, बिकॉज यू डोंट हैव असेट ऑन लास्ट डे ऑफ द कमिंग प्रीवियस ईयर। डन, खत्म बात, हम उतना ही देखते हैं। Asset on trial run depreciation is allowed on asset even if it has been used for the trial production trial run। मैंने कहा ना, इसीलिए ट्रायल प्रोडक्ट सैंपल प्रोडक्ट निकाल लो, डेप्रिसिएशन मिलना शुरू हो गया, खत्म, बाद में आराम से यूज करो फिर asset को। when the asset is purchased on hire purchase system, कुछ याद होगा, बहुत सालों पहले पढ़ा होगा, हायर परचेस इंस्टॉलमेंट सिस्टम अभी भी है। अच्छा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में છે, अरे वाह, वो गंदू છે, गंदा नहीं है, एक्चुअली क्या कैलकुलेशन करना किचपिट लगता है, फिर एंट्रीज रिपीट है। हाँ, एक्चुअली इजी है, એમ તો જોવા જાય તો ડેપ્રિસિએશન એ કિચપિટનું જ કામ છે। શું છે ડેપ્રિસિએશન એકાઉન્ટ, અસેટ પીએનએલ, અસેટ પીએનએલ, અસેટ પીએનએલ ટોટલ એક જ છે ને। એટલે ઘણીવાર એવું કંટાળો, बिकॉज व्हेन इट बिकम्स अ मोनोटोनस तो थोड़ा सा आलस आता है। ओके, बट ठीक है। इंस्टॉलमेंट एंड हायर परचेज प्रैक्टिकली इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हायर परचेज इंस्टॉलमेंट में डिफरेंस क्या है, हायर परचेज में मेरे ख्याल से हम लोगों के लिए ओनरशिप राइट एंड में मिलती है और इंस्टॉलमेंट में फर्स्ट मिनट पर ही मिल जाते हैं। ओके, हाँ, दैट इज व्हाट एन डिफरेंस। इनकम टैक्स से कोई लेना देना नहीं है भाई, हायर परचेस के इंस्टॉलमेंट लोन पर भी लिया, असेट तुम्हारे नाम का है, डेप्रिसिएशन ले लो, बस बात खत्म। मैंने कहा ना, इनकम टैक्स वाले झंझट ही नहीं करते, असेट है, ओनर नाम दिख रहा है, को ओनर्स है, प्रोपोर्शनेट ले लो, चलो कोई बात नहीं है, पर डेप्रिसिएशन इज अलाउड। इनकम टैक्स वाले ये डेप्रिसिएशन में अपना खुद का डेप्रिसिएट ही नहीं करते, वो लोग टाइम पास नहीं करते हैं।
If any asset has been acquired on hire purchase and ownership of the asset has been transferred of a hire purchaser at once, then the hire purchaser shall be deemed to be owner from the date of receiving possession of the asset, and he shall be allowed depreciation on that asset. देखो, they have used the word possession, they have not used the word ownership. हायर परचेस में असेट मिल गया तो खत्म बात, यू आर द ओनर, चैप्टर क्लोज. डेप्रिसिएशन ऑन इंपोर्टेड कार, अब इंपोर्टेड हो कि एक्सपोर्टेड हो, कुछ भी असेट है, डेप्रिसिएशन लेने का है, बात बात खत्म. वैल्यू लेस देन 5,000, very obvious. Depreciation will be allowed even if the value of the asset is less than 5,000. फॉर एग्जाम्पल ये सिर्फ मेरा 2,000 रुपए का है, फिर भी मैं डेप्रिसिएशन क्लेम करूंगा इसके ऊपर अंडर प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर. 40% की 15%. वाई? अरे भाई, ये तो कनेक्शन को कुछ लेना देना नहीं, मैं ऐसे चलते फिरते करता हूँ, ये इसका कंप्यूटर से कोई कनेक्शन नहीं है. 15% में मिलेगा ये. रोड पर चिल्लाने के लिए हर क्लास में मैं लेकर चलता हूँ, यही क्लासों में कंप्यूटर पर पढ़ा रहा हूँ, बाकी सब जगह पर ऐसे चल रहा है. इट इज नॉट कनेक्टेड विद द कंप्यूटर. ओके, बहुत इंपॉर्टेंट. एक मुझे आपके इस पॉइंट से एक बात याद आ गई कि प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स श्रीवास्तव सर थे, हमारे औरंगाबाद के हेड थे वो. प्रिंसिपल कमिश्नर मतलब एंटायर रीजन के बॉस. लकीली उनका इंट्रोडक्शन मेरा ऐसा, वो नए नए आए थे और उनका इंट्रोडक्शन ऐसा हुआ कि एक रेड मैटर उनका हुआ होगा और असिस्टेंट कमिश्नर वहां बैठे होंगे. तब मैं किसी काम के लिए वहां गया था, तो मुझे सर ने अंदर बुलाया कि यस क्या काम है. तो तब वो जो असिस्टेंट कमिश्नर मेरे स्टूडेंट थे, उन्होंने तुरंत कहा, अरे सर आइए, कब आए और बड़ौदा से, ऐसी बात हुई. तो बोले आप पहचानते हो? तो बोले हाँ, अपने सर है. बोले हम जो भी पढ़े यहाँ पर इन्हीं के कारण से. तो फिर मुझे बिठाया, फिर हमारी दोस्ती हो गई थी प्रिंसिपल कमिश्नर की मेरी. एक दिन उन्होंने एक किस्सा सुनाया था कि बोले आप क्लास लेते हो तो बच्चों को किस्सा जरूर बताना कि डेप्रिसिएशन पर भी केस होता है. तो उन्होंने कहा था कि डेप्रिसिएशन के अंदर ऋतिक रोशन की जो कंपनी है, दैट इज यूर, उनकी राकेश रोशन की, दैट इज यूर, नहीं नहीं वो नहीं नहीं, राकेश रोशन की जो कंपनी है जिसके अंदर ये सारे मूवीज बनाते हैं, जिसमें उन्होंने कोई मिल गया, बाद में क्रिश, एंड बाद में क्रिश 2 बनाई उन्होंने, बराबर. क्रिश 3, 2, J1, 1, 2, 3, जेपन कोयमा. उसमें उन्होंने थर्ड वाले का किस्सा उन्होंने कहा कि बोले जो अभी तब उस वक्त लेटेस्ट थी, तो उन्होंने कहा कि लेटेस्ट जो मूवी आई थी जिसके अंदर उन्होंने बहुत सारे कंप्यूटर यूज किया था. अब कंप्यूटर यूज किया तो वो लोगों ने जितने कैमरास थे, कैमरास पर 40% डेप्रिसिएशन क्लेम किया था. ના, ફ્લિપકાર્ટ નથી ભાઈ. હા. એ જે પણ નામ જવા દે ને, હા, છોડો ને, આપણે શું કરીએ, એની કંપની. ઓકે, ખબર પડી ગઈ કયા પિક્ચર નું છે, કંગના રનાવત સાથેની પિક્ચર હતી એની, બસ ત્યાંથી જેને બંને ઝઘડો થયો હતો પછી. હા. ओके. हाँ, अरे छोड़ो, कौन सी तुमको आकर मिलने वाली कंगना को, कंगना पकड़नी है क्या तुमको? हाँ. तो जो है हमारे लिए, दैट इज, तो उस वक्त उनका ऐसा हुआ कि उन्होंने 40% क्लेम किया. रिटर्न वाज फाइल्ड इन द मुंबई, वेरी ऑब्वियस. एट दैट टाइम ही वाज पोस्टेड इन द मुंबई एज अ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, सीआईटी थे वो. अभी यहाँ पर प्रिंसिपल सीआईटी, पीसीआईटी बनकर आए थे. तो ही वाज अ सीआईटी. तो जब सीआईटी अगर है तो उनको ऐसा हो गया कि हाईकोर्ट में वो मैटर चला गया था फॉर इंटरप्रिटेशन, एंड एट दैट टाइम ही हैज टू रिप्रेजेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट. कोर्ट में उनको खड़ा होना पड़ा था आर्ग्यूमेंट करने के लिए, क्योंकि एडवोकेट कुछ बोल नहीं पा रहे थे एट दैट टाइम. तो उन्होंने मुझे ऐसा बताया था कि उन्होंने बहुत सारे करोड़ों रुपए का उनका प्रॉपर्टी था, क्योंकि पूरा शूटिंग कंप्यूटराइज था. तो दे क्लेम्ड कैमरास का 40% क्लेम किया था, और असेसिंग ऑफिसर ने जो है वो रिजेक्ट किया था, कहा था कैमरास आर 15%. हाँ, देयर वाज अ डिस्प्यूट, 40 और 15, 40 और 15. केस वेंट टू हाई कोर्ट. आफ्टर अपीलेट ट्रिब्यूनल इट वेंट टू हाई कोर्ट. हाई कोर्ट में सिर्फ इंटरप्रिटेशन होता है, प्रोविजन को समझा जाता है, बाकी का बेसिक आप आपका देख लो, प्रोविजन में कहाँ गड़बड़ हुई आप वो बताओ हमें बस. तो वहां उन्होंने कहा गया, वो लोगों ने ऐसा कहा कि सर ऑल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड विद द प्रोजेक्टर्स एंड ऑल कैमरास. तो कैमरा शूटिंग जो है, हमें अगर जो हमें इफेक्टिवली रिजल्ट चाहिए, वो रिजल्ट के लिए हमें कैमरा करना पड़ेगा, तो हमें उसको लगाना है, तो हमें ये हमारे लिए 40% चाहिए. तो जब काफी सारा आर्गुमेंट हुआ तब अल्टीमेटली इन्हें आर्गुमेंट करना पड़ा. इन्होंने कहा कि हर चीज जो लैपटॉप से कनेक्टेड चले वो आप कह नहीं सकते हो कि इट इज अ 40%. इट इज नॉट अ कंप्यूटर दैट इज ऑपरेटेड. उन्होंने तो एग्जांपल दिया था. उन्होंने कहा कि देखा जाए तो आज घर में वॉशिंग मशीन होता है, वॉशिंग मशीन भी ऑटोमेटिक चलता है, तो उसमें भी कंप्यूटर है. तो क्या आप वॉशिंग मशीन को भी कंप्यूटर को 40% डेप्रिसिएशन दोगे क्या? कार भी आजकल सारे उस वक्त भी इलेक्ट्रॉनिक आने लग गए थे, यानी दैट इज यूर, सारे के सारे इक्विप्ड थे. जैसे अगर आज कहोगे तो आज एमजी हमारे पास इंटरनेट इनसाइड है, तो ऑल इट इज यूर कंप्यूटर कनेक्ट, तो क्या वो कंप्यूटर है?
नहीं, इट इज योर व्हीकल ओनली। सेम उन्होंने कहा कि ये वॉशिंग मशीन ही है। सिमिलरली उन्होंने ऐसा कहा कि मोबाइल है, तो क्या मोबाइल भी आप पूरे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कनेक्टेड है, तो क्या वो कंप्यूटर है? नहीं है। एंड आफ्टर गिविंग मोर एग्जांपल्स, कोर्ट सेटिस्फाइड एंड कोर्ट ने डिपार्टमेंट का इंटेंशन कंटिन्यू किया और इनको कहा गया कि 40% ने यू आर अलाउड फॉर ओनली 15%, रिमेनिंग अमाउंट का टैक्स आपको भरना पड़ेगा। सो डेप्रिसिएशन पर भी कोर्ट में मैटर्स आते हैं। ओके, तो ऐसा समझना मत कि ये जो पढ़ रहे हो सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ रहे हो। डन। नेक्स्ट चलिए, जीएसटी पेड ऑन कॉस्ट ऑफ असेट परचेज। अब ये तो आप लोगों के ज्यादा किसको पता होगा ना। याद करो ब्लॉक क्रेडिट्स, ब्लॉक क्रेडिट थ्योरी याद होगा। एक्सपेंडिचर इनपुट्स ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट प्लांट एंड मशीनरी, ब्लॉक क्रेडिट नॉट अलाउड इनपुट्स। तो કઈક થયું હશે ને તમારું? हाँ आईटीसी। अच्छा ओके, आइडिया दे देता हूँ, रफ आइडिया दे देता हूँ। वैसे थर्ड ईयर में तो पढ़ा ही होगा ना, थर्ड ईयर में था ये। रिकैप कर लो। हाँ, तो जो हमारे लिए एक होता है दैट इज आईटीसी। देखो जीएसटी का एक सुपर फॉर्मूला दैट इज आउटपुट माइनस इनपुट, आउटपुट माइनस इनपुट, दैट इज अ सुपर फॉर्मूला। आईटीसी अगर आपको माइनस करना है तो वो जो है सारे कैपिटल असेट पर अलाउड है। कैपिटल असेट पर अगर है तो वो असेट जिस पर आपने डेप्रिसिएशन क्लेम किया है, और अगर आपने जीएसटी की अमाउंट ऐड करके डेप्रिसिएशन क्लेम किया है तो यहाँ अलाउड नहीं है। और अगर आप ये कहते हो कि नहीं हम जीएसटी की अमाउंट ऐड नहीं कर रहे, मुझे सेपरेट कर रहे हैं, रिमेनिंग अमाउंट है हमारा असेट की वैल्यू एंड वी आर चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑन दैट, देन डेप्रिसिएशन इज अलाउड। सो इफ यू आर गोइंग टू क्लेम डेप्रिसिएशन ऑन द जीएसटी अमाउंट एडेड प्रॉपर्टी, देन डेप्रिसिएशन जो है फिर आपको आईटीसी अलाउड नहीं है, तो वो प्रोविजन के लिए कहा है। If asset paid on purchase of an asset is claimed as ITC and such amount will not be part of cost for purpose of calculation of depreciation. If however ITC is not claimed or not allowed to be claimed, then GST paid on purchase of an asset will become part of cost for the purpose of calculation of depreciation. Okay. Now there are categories of asset, ये भी थोड़ा सा बता देता हूँ रफ में अभी, एक सेकंड। So category of asset, as I said you, there are total 4 blocks. जोई लो, building, furniture, plant and machinery and intangible asset. Done. What is a झाड़? Definition of plant. A plant includes ships, vehicles, books, scientific apparatus, surgical equipment used for purpose of business profession, but does not include tea bushes. Tea bushes are not your plant. Huh? Livestock are also not your plants. प्लांट एंड मशीनरी नहीं है। जैसे मैंने कहा था मिल्क काउस वगैरह कैटल्स है, दे आर नॉट प्लांट एंड मशीनरी। बिल्डिंग्स एंड फर्नीचर फिटिंग क्योंकि सेपरेट है। चलिए बिल्डिंग एंड, अब देखो रेट आपको लोग ध्यान देना। अब ओवरऑल उन्होंने रेट दे दिया है जो मैंने आपको कहा 5, 10, 40 3 ग्रुप है ना उसमें। बिल्डिंग में क्या है? बिल्डिंग इंक्लूड्स रोड्स, ब्रिजेस, डैम्स, वेल्स, ट्यूब वेल्स। Residential building. A building shall be deemed to be residential building if built up floor area used for the residential purpose is minimum 67% of total built up floor area, except hotels and boarding houses. Rate of depreciation is 5%. Okay. Non-residential building, that is इसके अंदर आपका आ जाएगा शॉप, गोडाउन, ऑफिसेस वगैरह वगैरह। ओके, ऑलवेज रिमेंबर दिस। एंड टेम्पररी बिल्डिंग सच एज वुडन स्ट्रक्चर्स 40%। डन। ये 3 रेट आपको याद रखने ऑलवेज, 5, 10, 40। बिल्डिंग के सिर्फ 3 ही ब्लॉक है। अगर आप ऑब्जर्व करोगे मैंने यहां बना कर ही दिया था 5, 10, 40। ओके, देन ऑलवेज रिमेंबर दिस 5, 10, 40, 5, 10, 40। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं ऐसा कह देता हूं कि फॉर एग्जाम्पल धवल सर ने अगर क्लासेस के लिए उन्होंने खुद की जगह है और वो बिल्डिंग है, तो क्लासेस की बिल्डिंग का डिप्रिसिएशन कितने परसेंट पर मिलेगा? 10%। और समझो धवल सर का बंगलो होगा 1 करोड़ रुपए का, तो उस पर डिप्रिसिएशन कितना मिलेगा? 0। फिर से मेरा क्वेश्चन आप समझो। धवल सर के पास में 2 बड़ी प्रॉपर्टी होगी, एक उनका जो है क्लासेस के लिए पूरा हॉल है, तो डेप्रिसिएशन आपने करेक्ट कहा 10% बिकॉज इट फॉल्स नॉन रेसिडेंशियल। बट घर है तो घर के लिए डेप्रिसिएशन कितना मिलना चाहिए? 0। क्यों? बिल्डिंग तो छे,
एरिया का चक्कर हो गया. हाँ, हाउस प्रॉपर्टी में આપણે डेप्रिसिएशन क्या હતું? ટેલ મી ધ લોજિક. Why depreciation on residential house will not be allowed to Dhaval sir? जबकि है ना लिखा लॉ तो लिख कर दिया रेसिडेंशियल बिल्डिंग है. ફ્લોર એરિયા ને આ તે કશું જ નહીં, એ તો ખાલી લખવા માટે લોકો લખે છે કે ફ્લોર એરિયા. રેસિડેન્શિયલ બિલ્ડિંગ ના ઘર છે, એક્ઝામ્પલ 1 કરોડ નું ઘર છે યાર, 5% 5 લાખ રૂપિયા પીએનએલ માં મળવાનું છે, પ્રોફિટ એટલું ઓછું, અને હું ઇન્કમ ટેક્સ ઓફિસર છું, હું કહું છું નહીં લેના હે, ઝીરો. કે બીજી ચેપ્ટર છે એમને તો. પછી ને જીતીને આમ જતા જતા રોડ પેન મારી લીધો રોંગ સાઈડ. હા 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 બોલો 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 રીઝન. Hey, logics. You're doing professional courses. You must have your logics. A very simple example, simple point. Depreciation is allowed for business asset. Personal residential building पर depreciation दोगे क्या? आज मैं कहता ना हम जाता जाता गाड़ी टर्न मार लेते. जाता जाता इंडिविजुअल ऐसा बिजनेस नॉन बिजनेस पर्पस એમ નથી કીધું, ગાડી ટર્ન મારેगी બોલते. ઓકે, હવે તો પછી આ લો મેકર આ શું કામ બનાવ્યું? તો પછી લો મેકર શું કામ બનાવ્યું? બિલ્ડર માટે તો સ્ટોક ઇન ટ્રેડ છે, એ તો ડેપ્રિસિએશન જ ના વળે એ લોકોને. એક્ઝામ્પલ તમને પાછું એકવાર યાદ કરાવી દો. We have seen with the one problem in house property that there are 3 units. Unit first was let out, second was self occupied for residence, and third was self occupied for business or profession. For example, पूरा ઘરની કિંમત હશે, for example just a rough example 10 લાખ, ઓકે, એના ઉપર ડેપ્રિસિએશન બિઝનેસ પ્રોફેશન છે તો આ રેસિડેન્શિયલ નથી, બિઝનેસ પ્રોફેશન માટે યુઝ કરે છે, 10% આવશે, which comes to 1 lakh, and it will allowed only 1/3 portion because it is occupied for 1/3 use only. 2/3 is not allowed. Very obvious. તો પછી why lawmaker has given a provision of residential building? પાટલી વાળો એક્ઝામ્પલ આપી દીધા. એટલે તમે મેમરી ગેમ નથી રખતા, ખાલી હું આવું ત્યારે જ ભલે યાદ રાખવાનું, પછી મારો ચહેરો ગાયબ એટલે તમે ઇન્કમ ટેક્સ ભૂલી જવાનું. क्या है, बोलने गए लेकिन गलती से ऐसे मिनिस्टर बन गए कि जिसको लोग रिस्पेक्ट नहीं कर रहे. अरे यार छोड़ो, आटलो फुटेज लिया करता, याद करो सैलरी चैप्टर. Accommodation owned by employer provided to employees. Accommodation owned by employer provided to employee. તેના અંદર 31st August પછીના રેટ ચેન્જ, એના પહેલાના રેટ ચેન્જ, population of the city. When it is owned by employer provided to employee, then the employer property is treated as for the purpose of business profession. તો પછી ડેપ્રિસિએશન का 10% લેશે ના, 5%. યાદ કરો મેં તમને કીધું તો એલેમ્બિક, રિલાયન્સ ટાઉનશીપ, then company will get a depreciation at 5%. હવે ચલો એક તમને લોજિકલ એક્ઝામ્પલ આપી દઉં. એન્ટેલિયા, અરે એન્ટેલિયા, એન્ટેલિયામાં કોણ રહે છે? મુકેશભાઈ. ઓકે, મુકેશભાઈ, ઇટ ઇઝ અ મોર દેન 40-50 ફ્લોર્સ નું છે ને કદાચ, વધારે જ છે. ચલો ને આપણે તો 25 જ ગણીએ, બહુ થઈ ગયું આપણા માટે, તો એટલું આમ થઈ જઈશું આપણે. હા ઓકે, 25 ફ્લોર્સ. ઓકે, એમાં પણ ટોપ ફ્લોર એમને કંઈક લાઇબ્રેરી ને એ બધું છે, એન્ટરટેનમેન્ટ રૂમ વગેરે છે, પછી એક ફ્લોર એમને એ લોકોના રૂમ માટેના એ લોકોના છે, પછી એવી રીતે 1-2 રૂમ્સ ખાલી જે છે ડ્રોઈંગ રૂમ્સ છે, અને પછી કિચન છે, અને પછી વેટિંગ રૂમ છે, અને પછી 2-3 જે છે ફ્લોર્સ ફોર સર્વન્ટ છે, એના પછી જે છે ફ્લોર્સ આર ફોર
टॉप एंड एम्प्लॉइज, डायरेक्टर्स, या तो जो है उन लोगों के, दैट इज योर डिसीजन मेकिंग पावर, सीएफओज, सीईओज, दे हैव बीन गिवन एकोमोडेशंस. વિચાર કરો એ રખો. પછી નીચે રૂમ્સ આવે, બે ત્રણ ફ્લોર્સ જે છે ફોર સિક્યુરિટીઝ, અને પછી પાર્કિંગ્સ અને એવી રીતે. ધેટ ઇઝ વોટ એન સિસ્ટમ. अब इतना करोड़ों का घर बनाया है, अगर पर्सनल यूज करेंगे तो डेप्रिसिएशन मिलने वाला है क्या? नहीं. तो एक काम क्या किया, चलो ऊपर का फ्लोर हम हमारे लिए रखे, आप मत दीजिए डेप्रिसिएशन, लेकिन बाकी के फ्लोर्स पर तो हमारा स्टाफ रहता है ना, तो ना डेप्रिसिएशन दो 5% बॉस. इट्स अ वेरी गुड फिगर स्टिल, एंड दैट इज व्हाट द लॉजिक व्हाई एम्प्लॉयज हैव बीन पोस्टेड. देखो बहुत चीजें ऐसी होती है, हम ये सारा इनकम टैक्स में हम देखते रहते हैं, हमें तो ये पता भी चलता है, मैं तो मेरे क्लाइंट्स को इसके फायदे भी देता हूँ कि आप लोग ये कीजिए, दीज आर द प्रोविजंस व्हिच आर अलाउड, छोड़िए मत, एग्जॉस्ट ऑल रेमेडीज, फिर कुछ बचा तो टैक्स भरने के लिए आओ, अदरवाइज आना नहीं है. ओके, डन. अब समझ में आ गया डिफरेंस. नेक्स्ट टाइम से कंपनी में अगर जाओ, अगर कंपनी ने कहा कि बोलो 5% किसके लिए बनाया, सर कंपनी के नाम से बिल्डिंग बना, एम्प्लॉयज को दो, मुझे भी दो, डेप्रिसिएशन 5% मिलेगा. ओके, डन. कॉस्टिंग कम, डन. ओके, तो फिर टेम्पररी बिल्डिंग कौन से होते हैं वुडन स्ट्रक्चर के? क्या तंबू? अरे तंबू हवा में उड़ गया तो बम्बू. कौन से? अब ये कौन से? कंस्ट्रक्शन साइट पर्पस के लिए जो बनाते हैं वो तंबू लगाते हैं डंडे, उनके लिए नहीं है. Because it is not a building. તમે અવસર એ કર્યું જ નથી ને જે તમારે જોવાનું હતું આજ સુધીમાં, કોમર્સમાં જ ના જોયું તમે લોકો, હદ જ છે. हाँ कौन सा? ऐसा देखा जिसको डेप्रिसिएशन मिलेगा, हाँ तो कौन सा? ये जो नॉर्मल होता है नहीं बेटा, देखो कैसा होता है. फॉर एग्जाम्पल, चलो कभी सर्कस गए हो? अब तो जाते ही नहीं है लोग, इसलिए सर्कस आना भी बंद हो गया है, लेकिन सर्कस जो है अगर गए होंगे, तो सर्कस हो पूरा तंबू. ओके, देन डेप्रिसिएशन कितना? नहीं, उनको भी नहीं है. नहीं. अच्छा, पंडाल शामियाना ये तो मालूम है ना, कि जब अभी नवरात्र रहेंगे तो सब ऐसे लगाया जाएगा. ओके, हाँ, डेप्रिसिएशन कितना? नहीं, वो भी नहीं. इट इज ऑल फर्नीचर. तो कुछ કહ્યું? अरे बॉस, फिल्म सेट्स मेड अप ऑफ पीओपीज एंड वुडन स्ट्रक्चर्स. फिल्म सेट जब लगाया जाता है, डेप्रिसिएशन मिलता होगा तो ही बनाएंगे ना. डेप्रिसिएशन ही नहीं मिलने वाला है, अरे तो बनाएंगे काय को हम लोग. अर्लियर दिस वाज एट 100%, मोदी जी रिड्यूस इट टू 40%. ओके, अर्लियर इट वाज अलाउड एट 100%. इसीलिए बात है 2001 एंड 2 की, कि जब देवदास मूवी का शूटिंग हो रहा था शाहरुख खान की, तो एट दैट टाइम द सेट, संजय लीला भंसाली ने सेट लगाया था, उस जमाने में 20 करोड़ रुपए का सेट लगाया था. भरत शाह और उसके प्रोड्यूसर के बेचारे लूट गए थे सिर्फ सेट लगाने में. उसका सेट, भव्य सेट याद करो. बाद में फिर हम दिल दे चुके सनम, सेट्स याद करो. देन रामलीला, सेट्स याद करो. अगेन आपके जो बाजीराव मस्तानी, सेट्स याद करो. तो बॉस, अगर हमें डेप्रिसिएशन नहीं दोगे, पूरा बनाना है, तो क्या हम क्या 5% क्लेम करते बैठेंगे? 5-10. आप 40-100% दोगे तो हम बिल्कुल बनाएंगे, उससे हम आर्टिस्ट को काम देंगे, उससे पैसा आएगा. ओके, दिस इज व्हाट इन वुडन स्ट्रक्चर्स. कभी अगर आप लोगों ने रामोजी स्टूडियो विजिट किया अगर होगा हैदराबाद, दिस वन वुडन स्ट्रक्चर्स. ઓકે, ક્યારેક જાજો, જોવા જેવું છે. એમ તો મુંબઈમાં પણ હવે થઈ ગયું છે, પણ જાજો. હું ક્લાસની પિકનિક ઘણી વાર લઈ ગયો હતો, આ વખતે હેતલ અને દિવ્યાંશને પણ લઈ ગયો હતો. 3-4 વાર તો હું ગયો છું પિકનિકમાં સ્ટુડન્ટ્સને લઈને. सर. હાજી બેટા. सर वो कंस्ट्रक्शन साइट पे जो बुकिंग ऑफिस बनाते हैं टेम्पर, अब बुकिंग ऑफिस जो होता है वो टेम्पररी होता है, बस उसको बुकिंग ऑफिस का टेम्पररी मिलेगा, बस उतना ही. तो वो तो आजकल मेरे ख्याल से टीन वाले शेड ही लेकर आते, कंटेनर होता है मेरे ख्याल से, कंटेनर को लाकर काट कर बना देते वो लोग. देन यू आर अलाउड, बस. बट वो वुडन स्ट्रक्चर का रहा तो, बाकी के लिए नहीं. पर वो वाले तो है, पीओपीज वगैरह के लिए, बिजनेस के लिए अलाउड है. સેમ્પલ હાઉસ ના અંદર સેમ્પલ હાઉસ ઇઝ યુ સ્ટોક. હા, પર એનું જે ફર્નિચર છે એ લોકોને રેવન્યુ એક્સપેન્ડિચર છે, કેમ કે સેમ્પલ હાઉસ છે. ओके, चलो अब फर्नीचर फिटिंग्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिकल एंड सैनिटरी फिटिंग्स. अब ध्यान देना,
फॉर एग्जाम्पल मैंने पहले भी आपको कह दिया कि भैया यहाँ पर अगर जो एसी लगा है तो वेरी ऑब्वियस एसी और प्लांट एंड मशीनरी, तो जो फैन लगे हैं वो क्या है, तो देखने की जरूरत क्या है, सब देखा देखे बगैर भी बोल सकते हो। कैपिटल है, रेवेन्यू है, सब देखते ही पता चला। ये फर्नीचर फिटिंग में आएगा। फैन इज फर्नीचर दो इट इज कॉल्ड एज अ प्लांट एंड मशीनरी, बट वो फर्नीचर में गिनते हैं वो से। ये ट्यूबलाइट वगैरह भी जो है ये सारे फर्नीचर में आता है। इट इज नॉट अ प्लांट एंड मशीनरी, यानी जो कि प्रोडक्शन जैसे कूलिंग कर रहा है ये कर रहा है, देन वो प्लांट एंड मशीनरी डेफिनेशन में जाएगा। पर वो नहीं, ये फॉल्स सीलिंग ऑल्सो प्लांट फर्नीचर्स, कर्टन्स ऑल्सो फर्नीचर, अब बेंचेस ऑल्सो फर्नीचर, दिस टेबल ऑल्सो फर्नीचर। अब ये सोचो कि जब अगर आप जर्नल एंट्री पास करोगे, फॉर एग्जांपल सर ने जब कर्टन्स लाए होंगे तो जर्नल एंट्री क्या पास की होगी, टैली में एंट्री डेबिट व्हाट कम्स इन, बट कर्टन का एक्सपेंडिचर गिनते हैं। तो कर्टन्स अकाउंट डेबिट, दैट इज एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, ओके। फिर उन्होंने जो है कि दैट इज योर बेंचेस लाए होंगे तो 50 बेंचेस अकाउंट डेबिट, नाउ इट इज असेट, बेंचेस अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। फिर एडिशनल और 10 बेंचेस लाए तो उसमें ऐड करेंगे जर्नल एंट्री। फिर उसके बाद में फैन खरीद कर लाए तो फैंस अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, क्योंकि बैलेंस शीट में तो बताना पड़ेगा ना असेट कौन सा है। अब अगर आप ऐसे एक एक लिस्ट बनाओगे, लेजर अकाउंट बनाओगे, तो इनकम टैक्स ऑफिसर तो पागल हो जाएगा। अरे ये सब हटाओ, क्या है, फैन है 10% में ले जाओ, हाँ ब्लॉक, 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 नेम कॉमन रेट कॉमन, ब्लॉक। उससे आसान करना है, उसे ये कहना है भैया आपने 50 फर्नीचर था ओपनिंग डब्ल्यूडीवी चल ऐड, 10 लिए हाँ उसी में ऐड, ओके। आपने 3 फैन लेकर आए, ओके प्लस उसमें ऐड, उसमें से 2 फैन आपने भंगार में निकाल दिए, माइनस, क्या भंगार का पैसा माइनस, रिमेनिंग डेप्रिसिएशन क्लेम करो फ्री 10%। दैट इज व्हाट अ पैटर्न। सो ऑलवेज ओपनिंग ऐड न्यू माइनस सेल प्राइस क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी, खत्म। क्यों, क्योंकि हम लोग नेम कॉमन रेट कॉमन का ब्लॉक बनाकर रखते हैं, ओके। तो ये सारा इसमें आता है। इंटेंजिबल असेट्स कैन बी नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट वगैरह वगैरह जो हमने कल लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। बट डेप्रिसिएशन जो है वेरी ऑब्वियस गुडविल पर नहीं है, क्योंकि गुडविल कैन नॉट बी डेप्रिसिएटेड, इट कैन बी रिटर्न ऑफ। प्लांट एंड मशीनरी के अब देखना, ऑब्जर्व करना, मैं सारे पढ़कर नहीं बताऊंगा, जस्ट एक रफ आइडिया के लिए दूंगा। 40% वाले जैसे आपके काम के बुक्स के ऊपर 40% मिलता है। फिर से आप जो मैंने ये जो चार्ट आपको बनाकर अभी दिखाया था, एक मिनट में इन लोगों के साथ में भी ये चार्ट भी शेयर करता हूँ। अब देखो जैसे अभी आपको मैंने ये यहाँ पर ये बता दिया, 10% वाला बताया, 40 बताया, ये भी 10 बता दिया। अब यहाँ पर अलग अलग ब्लॉक्स है। प्लांट एंड मशीनरी में देखो रेट अलग है, नाम प्लांट एंड मशीनरी है, तो कौन 40 में जाएगा, कौन 30, कौन 25, कौन 15, कौन 10, कौन 0, ओके। चलो तो चलो देखना शुरू करते हैं हम लोग अब। दैट इज यूर, जैसे बुक्स है 40%, लाइब्रेरी 40%, एनुअल पब्लिकेशन 40%, अदर बुक्स 40। आप बोलोगे सर एक बुक और यूज कर लो ना, बहुत हो गया ना हमारे लिए। पर पहले ऐसा था, इफ इट इज एनुअल पब्लिकेशन 100%, अदर देन एनुअल इट वाज 60%, नाउ इट हैज बीन सिंक्रोनाइज एट 40%, ओके। कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंक्लूडिंग कंप्यूटर पेरिफेरल्स आ गया ये 40%। वेरी ऑब्वियस, ये जो एक्सपेन का ये हमारे पास सेट है, इट इज एंटायरली कंप्यूटर ऑपरेटेड, देन इट गेट्स अ बेनिफिट ऑफ 40%, ओके। इंक्लूडिंग अगर टैली सॉफ्टवेयर कोई भी सॉफ्टवेयर खरीदो 40% फ्लैट रेट। नेक्स्ट है एयर वाटर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट आ गया, ये 40% में किया उन्होंने, बट वो वाटर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट किया वगैरह, और सॉलिड वेस्ट रिसाइकलिंग रिसोर्स, एनर्जी सेविंग डिवाइसेस, फिर सोलर कुकर्स वगैरह, ये सारे नाम दिए हैं। अब ये आपको एक बार जनरल ऐसा कुछ याद रखना है तो याद कर लेना आप लोग। एरोप्लेन पर भी 40% मिलता है, वाइफ सेविंग मेडिकल इक्विपमेंट पर भी 40% मिलता है। वाइफ इज लाइफ एंड लाइफ इज वाइफ, ओके। कंटेनर्स मेड अप ऑफ प्लास्टिक कंटेनर्स वगैरह यूज रिफिल्स के लिए अगर होगा तो भी उसके लिए मिलेगा 40%, ओके। फिर आपके 30% के रेट वाले देख लो। कार, बसेस, लॉरीज यूज इन बिजनेस रनिंग देम ऑन हायर, यानी जुगनू है, ओला है, पेला है, दैट इज ओला, उबेर सब, ओके। 30%। मोटर कार्स ये पर्टिकुलर पीरियड के बीच वाले हैं, उनके लिए डेप्रिसिएशन 30% है, जान दो, इतना कौन याद रखेगा डेट्स, ये अलग अलग। उसके बाद है मोल्ड्स यूज्ड इन रबर एंड प्लास्टिक गुड्स फैक्ट्रीज, molds and dyes are also your assets 30%,
उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी यूज इन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज छोड़ो, आईसीस वगैरह बनाने के लिए 30%, ऑल अदर कार्स 15%। उसके बाद मोटर बस इसी पर्टिकुलर पीरियड के लिए दिया है, कौन याद रखेगा यार 45% वाले। शिप्स, शिप बोट्स, ऑयल वेल्स, प्लांट एंड मशीनरी देखो 20%, 15% वाले, अदर देन 15%। यानी राउंड एंड राउंड अगर मैं ऐसा कहूँ कि भाई अगर मेरे पास एसी अगर लगा है ऑफिस में तो 15%, कंप्यूटर 40%। ओके, नाउ दिस इज व्हाट यूर इम्पोर्टेंट पॉइंट। देखो ये लोगों ने न्यू टैक्स रिजिम में इतना कहा है कि सारे टैक्स का जो भी है ना 40% ज्यादा रेट नहीं होगा। अरे वैसे भी ये लोगों ने जो है 40% ही रखा है, बाकी है ही नहीं, 40 के ऊपर कोई जाता ही नहीं बेचारा। सारे 40% रेस्ट्रिक्टेड है सभी के लिए। ओके चलो हम मान गए, हमने बिल्कुल बात मान गए, 40 भी दे रहे हो ना, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। ओके, अब मुझे लगता है कि जो है ब्लॉक एक बार चेक कर लेते क्या है क्या नहीं है। कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन दिया है, लेट अस स्टार्ट विद कैलकुलेशन आल्सो। पानी पिलो, अरे नहीं मैं पहले कीधું तो क्या आज तुम्हारे रजिस्टर लेने आवाना, दैट इज नेम कॉमन ब्लॉक बनेगा। हमारे प्रॉब्लम में देख लो कितने ब्लॉक्स दिए, 40 40 40 40 10 40 15। देखा जाए तो अभी तो रेट तो 3 ही है। ओके, कंप्यूटर 40 है, करेक्ट है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर 40 है, कंप्यूटर प्रिंटर 40 है, करेक्ट है। बुक्स भी एनुअल 40 है, डन। बुक्स विच आर नॉट एनुअल 40, ऑफिस फर्नीचर 10, लैपटॉप 40, फायर एक्सटिंग्विशर 15%, ठीक है, नो प्रॉब्लम। परचेज गुडविल ऑफ प्रैक्टिसिंग सीए in April 23 for 2 lakh and put to use from same date, a depreciation on goodwill is never allowed। ठीक है, चलिए मैं आप लोग ये मुझे क्वेश्चन डिक्टेट कीजिएगा, मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। मैं इन लोगों के साथ स्क्रीन भी शेयर कर देता हूँ। मैं अपने पैटर्न से सॉल्व कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि ऑलवेज आई बिलीव कि भाई हमें अपने पॉइंट्स पता होने चाहिए कि किस तरीके से हम लोग ये सॉल्व करेंगे। चलो तो देखना शुरू करते हैं हम लोग। एक मिनट यार, एक जाने तकलीफ है बस। ओके, हाँ, व्हाट इज योर फॉर्मेट, पहले फॉर्मेट याद रखो। हमें हमेशा सॉल्व करते वक्त हम ऐसे करते थे कि कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ ब्लॉक ऑफ, नाउ कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन ब्लॉक ऑफ फर्स्ट ब्लॉक, क्या नाम है हमारे लिए? प्लांट एंड मशीनरी। पहला एसेट कौन सा हमारे पास में? 40%। ओके, पहला यहाँ जो ही लो, व्हाट इज योर फॉर्मेट? आप लोगों का फॉर्मेट ऐसा है, always you have to write down opening WDV। opening WDV मतलब होगा that is on 1st of April 2023। ओके, अब ओपनिंग में 40% वाले कौन से प्लांट एंड मशीनरी, वो देखना शुरू करो। एक एक नाम बोलो मुझे। पहले तो है कंप्यूटर, ओपनिंग WDV कितना है उसका? 20। ओपनिंग WDV दिया होगा? नहीं, ओपनिंग WDV नहीं दिया बेटा उन्होंने। हाँ, डेट ऑफ परचेस ही हमारे पास डेट ऑफ पुट टू यूज है ओपनिंग में, यानी इसका मतलब देर इज नो वैल्यू। ओके, लेकिन ऊपर में हमारे पास और 1 अप्रैल है ना, सारे 1 अप्रैल के। ओके चलो, ओपनिंग में है ही नहीं आने, डन, कोई गल नहीं, आसान है हमारे लिए। चलो, ओपनिंग में हमारे पास में नो डाउट देर आर नो असेट्स। ओके, इफ एनी असेट इज एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर आपको ऐड करना है। चलिए बोलिए, न्यू असेट, न्यू कौन सा लिया है पहले हमारे लिए? पहला आपने कहा कंप्यूटर, कंप्यूटर की डेट बोलिए क्या है उसकी परचेस की? 27th of September 23 फॉर रुपीज 35,000। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट असेट क्या खरीदा हमने? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, डेट क्या है एक्विजिशन की? 2 अक्टूबर। अच्छा, पुट टू यूज की डेट दी है हमारे पास, पुट टू यूज की डेट क्या है? 5 अक्टूबर। ओके, तो अब ऊपर भी है ना, मैं ना पुट टू यूज की डेट लिख लेता हूँ मैं, अलग है कुछ पुट टू यूज उसका? 2/10 है। ओके, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। 2 अक्टूबर है, अरे पर उस दिन तो अजय देवगन था ही नहीं घर पर। हाँ, ओके, 5 अक्टूबर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बोलो कितना? 8,500। 8,500, ओके ठीक है। नेक्स्ट वन, 8,500। कंप्यूटर बेटा टेबल, प्रिंटर, कंप्यूटर प्रिंटर, डेटा पुट टू यूज क्या हमारे लिए?
3rd October 23 for rupees 12,500. Okay, next one. बुक्स भी हमारे पास में प्लांट एंड मशीनरी के डेफिनेशन में आते 40%। हाँ, रेट अलग होता तो ब्लॉक अलग हो जाता था। ओके, बुक्स बोलो मुझे, बुक्स का डेट क्या है? पुट टू यूज बेटा, सेम डेट, दैट इज ओपनिंग था, इसका मतलब तो ये हो गया, लेकिन परचेज दिया, कोई बात नहीं है। चलो बोलो कितना रुपीज? 12,000। दूसरा कौन सा सेट है 40% वाला? स्टिल यानी अदर बुक्स है, बट अदर बुक्स भी अब तो 40% में ही आते हैं हमारे लिए। डेट बोलो उसकी वापस से, सेम 1 अप्रैल। हाउ मच रुपीज? ओनली 1,000। नेक्स्ट, उसके बाद में लैपटॉप 40% में कवर होगा लैपटॉप का हमारा डेटा पुट टू यूज 5th of October 23। डन, 43,000। और कोई 40% में असेट है? नहीं। इसका टोटल कर लो हमारा 1,12,000 राउंड फिगर। ओके, નીલમાં એડ કરો કેટલું આવે છે? હે? Everyone? Okay, done. Very good. Now less. Our format is always a sell price less. Huh? Always remember, whatever you have received in name of sell price, maybe insurance, maybe scrap value, maybe anything, amount received against your transfer of asset, that is sell price on sale of asset. सेल ऑफ असेट भी कौन सा? इसी ब्लॉक का होना चाहिए, यानी ऊपर के लिस्ट में नाम होना चाहिए, ब्लॉक के बाहर का नहीं। अगर रहा तो आई डोंट थिंक किस केस में उन्होंने दिया है। ओके, 1,12,000 इज योर क्लोजिंग WDV। Closing WDV on 31st of March 2024. Depreciation is allowed on closing WDV. Therefore, depreciation, अब ध्यान से अब, therefore depreciation at the rate, what is the rate of depreciation? 40% इस ग्रुप में, 40% per annum on, ऑलवेज पहले क्या करना चाहिए? आदत रखना अपने, न्यू अलग करो और बैलेंस को लेकर आओ, न्यू अलग करो बैलेंस को लाओ, न्यू अलग करो बैलेंस को लाओ। न्यू मतलब न्यू का जो टोटल होगा वो लो, क्लोजिंग में से न्यू की वैल्यू हटाओ, बैलेंस लेकर आओ। प्रैक्टिस में ही आएगा आपको। अपने प्रॉब्लम में लकीली न्यू ये सारे न्यू में हमारे पास में आपको ये देखना पड़ेगा, दैट इज यूर मोर देन 180 डेज वाले कितने, और लेस देन 179 डेज वाले कितने। डेज आर इंपॉर्टेंट ना, पहले तो डेट थी 30 सितंबर, मंथली था पहले, बहुत सालों पहले, 15-20-22 साल पहले ऐसा था कि इफ इट इज यूज फॉर लेस देन 6 मंथ तो डेप्रिसिएशन फॉर दैट इज वेरी मोर देन 6 मंथ डेप्रिसिएशन। और 6 मंथ कैलकुलेट करना, यानी सब लोग हिसाब लगाते थे महीना ना, 30 सितंबर अक्टूबर सितंबर था, ये लोगों ने लॉ मेकर ने डेज कर दिए। अब आप गिनोगे, अगर 2 अक्टूबर को कंप्यूटर यूज किया तो वो 180 है, 180 ज्यादा है कि कम है देखना पड़ेगा। सिंपल से देखते, पहले एक एग्जांपल लेते हैं कि अक्टूबर का जो है दैट इज यूर, एक दिन नहीं था, 2 तारीख से तो गिनना है, यानी अक्टूबर के 30 दिन, नवंबर के 30-60, दिसंबर के 31-91, बराबर, जनवरी के 31-122, करेक्ट, एंड फेब्रुआरी 29, मार्च 31, 182, मोर देन 180 डेज, यानी 35 आ गया। यानी अगर मैं अब 2 दिन भी करूं और आगे बढ़ाऊं, यानी 4 अक्टूबर भी मैं गिनूं, तो मेरे लिए क्या हो जाएगा? दैट इज यूर अगेन 180 होगा एग्जैक्टली। तो मेरे लिए 4 अक्टूबर तक अगर आपने पुट टू यूज किया तो आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा 180 डेज, और अगर आपने पुट टू यूज 5 अक्टूबर या उससे आगे किया तो आपको 6 महीने का मिलेगा। डन, चलो तो फटाफट फटाफट करते, डेट लिख दी हमने, यानी 35 आपका 180 वाला है, करते जाओ कैलकुलेटर पर। 35 आपका जो है ना 180 वाला है, यानी ये 180 वाला है। 5th अक्टूबर ये लेस देन है, 179 वाला है। 3rd अक्टूबर आपका 180 वाला है। 1 अप्रैल तो 180 वाला ही है, 1 अप्रैल भी 180 है। ओके, 5th अक्टूबर अगेन 179 है। हाँ तो चलो,
यानी 35 प्लस 12,500 प्लस 12,000 प्लस 1,000 60,500 और रिमेनिंग 179 वाले हमारे। तो बैलेंस निकालो, 112 में से निकाल दो माइनस 61, 51,000. Okay. Now, if the asset is used to use for more than 180 days, 12 months depreciation, 24,000. And if it is put to use for less than 179 days, 6 month का depreciation into 6 by 12, 300. 10,300. Total 34,000. Okay. Now, this is what our depreciation अंडर सेक्शन 32 फॉर ओनली 40% वाला ब्लॉक का। अभी और एक ब्लॉक है हमारे पास, सिर्फ डेप्रिसिएशन एक पर नहीं मिलेगा, सब पर मिलेगा। और एक कौन सा ब्लॉक है हमारे पास में? 15 और 10 वाला भी है। ओके, चलो फिर से देखो, पहला प्रॉब्लम आप लोग कर रहे हो तो इसके लिए मुझे फिर से पूरा लिखना पड़ेगा। ऑन सेकेंड वन नंबर यूर कौन सा असेट है? प्लांट एंड मशीनरी है। पर रेट क्या है प्लांट एंड मशीनरी का? ऑफिस बिल्डिंग है, क्या है? ऑफिस फर्नीचर है। ओके बेटा, तो फर्नीचर है तो चलो कोई बात नहीं, ऑफिस फर्नीचर। ओके, ऑफिस फर्नीचर, फर्नीचर हमारे लिए आता है दैट इज योर 10% पर एनम। फॉर्मूला हमारा क्या होगा? रूटीन फॉर्मूला होगा दैट इज योर ओपनिंग डब्ल्यूडीवी, ऑलवेज ओपनिंग डब्ल्यूडीवी ऑन 1 अप्रैल 23। मेरे ख्याल से ओपनिंग नहीं है कि है? ओपनिंग ही है। हाउ मच रुपीज? 3 lakhs. इज देयर एनी एडिशन ड्यूरिंग द ईयर? लिखना पड़ेगा हमें। न्यू फर्नीचर एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर जो 10% वाला हो, है हमारे प्रॉब्लम में? नहीं है। डैश बैलेंस 3 लाख माइनस सेल प्राइस ऑफ ओल्ड असेट सोल्ड, दैट इज कोई फर्नीचर बेचा होगा तो। अभी इस प्रॉब्लम में तो वो लोगों ने नहीं दिया। दिस इज व्हाट यूर क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी, क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी ऑन 31st March 24। Therefore, depreciation at the rate 10% per annum on closing only है। क्लोजिंग में से मैं हमेशा कहता हूँ न्यू को हटाओ और बैलेंस को लेकर आओ। इस प्रॉब्लम में न्यू नहीं है, बैलेंस ही हमारे पास 3 lakhs है। अगर न्यू में आपको देखना है दैट इज यूर पुट टू यूज फॉर 180 और 179, बैलेंस में तो देखने की जरूरत ही नहीं है। सो कंपल्सरीली 10% पर एनम दैट इज 30,000। यानी इसका आपको डेप्रिसिएशन, इस ब्लॉक का डेप्रिसिएशन मिलेगा फॉर 30,000। सो डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 फॉर ब्लॉक ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर के ब्लॉक के लिए। और एक असेट है हमारे पास, कौन सा है? फायर एक्सटिंग्विशर रेट। अगेन इट इज अ प्लांट एंड मशीनरी 15% पर एनम, यानी ये हमारे लिए प्लांट एंड मशीनरी, हमें पता चल गया। ओके, इट इज नॉट अ फर्नीचर। हाँ, अब वापिस से फॉर्मूला क्या हमारे लिए? ओपनिंग डब्ल्यूडीवी ऑन 1st of April 23, व्हाट इज द वैल्यू? 4,000। अच्छा 2,500। ओके ठीक है, 2,500। और क्या हमारे पास में, क्या एडिशन कोई है हमारे पास? एड न्यू, नहीं। क्या कोई सेल प्राइस है? नहीं। Dash balance is 2,500. This is your what? Closing WDV. Depreciation is allowed on closing WDV. Therefore, depreciation at the rate 15% per annum on, that is your new हटाओ और बैलेंस को लाओ। ओके, न्यू तो हमारे पास नहीं है, बैलेंस है 2,500 एट द रेट 15%। कितना आएगा इसका? 375। टोटल हो जाएगा हमारे पास 375। तो अब ये डेप्रिसिएशन हो जाएगा अंडर सेक्शन 32 ऑन ब्लॉक ऑफ योर 15% का ब्लॉक है ये। देयरफॉर टोटल डेप्रिसिएशन, ये जो ओपनिंग बैलेंस है ना, वो ओपनिंग बैलेंस है, पर ये न्यू में नहीं आएगा, कि पुट टू यूज 142,023। तो कोई फर्क नहीं बेटा, 142,000 12 महीने आएगा वो। ओके हाँ, चलो बेटा अब टोटल कर लो एक बार का। टोटल डेप्रिसिएशन पहले का अमाउंट था हमारा 34,500 प्लस 30,000, 64,500 प्लस
तो કેટલું બેટા 64,875 is the depreciation which is allowed under section 32. બસ આ ફિગર હોવી જોઈએ. એમાં ખબર નહીં ડેટ વાઇઝ ને એને સાથે શું છે આઈ ડોન્ટ નો. ચેક કરી લો એકવાર. એમાં કંઈક અલગ હશે કદાચ. હા, મેથડ ઇઝ નોટ ઇમ્પોર્ટન્ટ, એમાઉન્ટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ટોટલ કરી જુઓ. ખાલી 40% જ કર્યું છે પછી બીજા ફોલોઈંગ सम्सમાં કદાચ થઈ ગયું. ઓપનિંગ અરે એ લોકો નેક્સ્ટ વેલ્યુ નેક્સ્ટ વર્ષનું ઓપનિંગ બતાવ્યું છે એ જવા દો. આપણે ડેપ્રિસિએશન થી મતલબ છે હમણાં. વોટ ઇઝ અમાઉન્ટ ઓફ ડેપ્રિસિએશન? કરેક્ટ જોઈ લો, અમાઉન્ટ જોઈ લો. હા, બટ ડેપ્રિસિએશન આપણી અમાઉન્ટ મેચ થાય છે કે એને કોની લાઈન જો આ ડેપ્રિસિએશન અચ્છા 24,200 10,000 આપણું આ જ હતું શ્યોર. અરે હા 35 આ 30 હતું અને 300. ओह ग्रेट. अगर तुम्हें ऑब्जर्व कर जो देख लेना ये पैटर्न उन लोगों ने वही दिया है ओपनिंग एड न्यू लेस बैलेंस. उन्होंने ऐड ये जो है ना दो अलग अलग बनाए 180 डेज और मोर 179. मैंने सिर्फ सीरियली नाम लिखा और मैंने डेट में पुट टू यूज लिख लिया. सो व्हाट और जो है मैंने सेपरेटली बनाकर आपको कर दे बिकॉज इट वाज योर फर्स्ट सम दैट वाज द मेथड. बस याद क्या है अब ऑब्जर्व कर लो एक की बात. ओपनिंग एड न्यू minus sell price difference per depreciation. Okay, done. Easy. Actually it was very easy. હવે આપણે છે ને આ સોલ્વ વાળો પ્રોબ્લેમ કરીએ. હવે એક સોલ્વ વાળો કરીએ એટલે આપણે બધા બીજા પોઈન્ટ કવર થઈ જાય. हाँ, अब ध्यान देना. हाँ, अब इस क्वेश्चन में मेरे ख्याल से सेल भी आया है. कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ऑफ मिस्टर जे फॉर AY 24-25 प्लांट एंड मशीनरी नंबर 1 15%. देखो हाँ, क्या चाहिए हमें? नेम कॉमन रेट कॉमन ब्लॉक PM 15 ब्लॉक बनेगा. नाउ इन दिस केस देयर इज एन ओपनिंग WDV. हाँ, ओपनिंग WDV. प्लांट एंड मशीनरी 2 15%. ओके, यानी PM है और 15% है, ब्लॉक बन जाएगा. बस फ्लैट असेट है. हाँ, फ्लैट. तो वो जो है हमारे लिए 5% दैट इज अ रेसिडेंशियल बिल्डिंग, उसका ब्लॉक अलग बिकॉज इट इज अ बिल्डिंग. फार्म हाउस हाँ भाई 5%. अब भाई वेरी ऑब्वियस है इट इज अगेन योर रेसिडेंशियल पर्पज ना. तो हमारे लिए जो है वेरी ऑब्वियस कि ये बिल्डिंग है और 5% है, ब्लॉक नो प्रॉब्लम. कार दो इट इज 15% प्लांट एंड मशीनरी, तो आपके ऊपर के ब्लॉक में आप ऐड कर सकते हो उसे. वाई? बिकॉज कार हमारा कवर किस में होता है? प्लांट एंड मशीनरी में. आ गया प्लांट एंड मशीनरी 15. तो ओपनिंग तो हमें वैल्यू उन्होंने बता दी. चलो भाई, following assets were purchased and put to use during the previous year. प्लांट 3 खरीदा. ओके, 15% वाला है. नेम कॉमन रेट कॉमन ब्लॉक बन जाएगा. डेट ऑफ परचेज दिया, डेट ऑफ पुट टू यूज किया है. ठीक है. फ्लैट भी एक नया फ्लैट खरीदा है, पुट टू यूज भी डेट दिया है. कार खरीदी है, पुट टू यूज 4 महीने 5 महीने बाद यूज की. कर क्या रहे थे गाड़ी को? फिर भी ठीक है. ओके. नाउ देयर आर सेल ऑफ असेट्स आल्सो. प्लांट एंड मशीनरी 2 हमने बेच दी और फार्म हाउस हम लोगों ने बेच दिया. ओके, ठीक है. चलिए डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है. बट 220 हो रहा है, मुझे 225 तक तो निकलना पड़ेगा क्योंकि वो 240 तक पहुंच जाएंगे वो लोग. TF है नहीं. पर अब एक पॉइंट, ये प्रॉब्लम मैं नेक्स्ट लेक्चर याद रख लो. नाउ देयर इज अ सेल. व्हाट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट? ओपनिंग एड न्यू सेल. आखिरी एक पॉइंट आपको पढ़ाना बाकी बता देता हूं. If the assessee is a manufacturing unit, manufacturing unit, maybe individual, maybe partnership, maybe firm, maybe any company, कोई भी हो, manufacturing unit, and plant and machinery is acquired during the year. Plant and machinery is acquired during the year. Additional depreciation of 20% is allowed on the new plant and machinery acquired and put to use during the year. प्लांट एंड मशीन सिर्फ न्यू पर, वो 1 साल के लिए फायदा. 1 साल के लिए फायदा.
फिर से याद रखो, इफ यू आर मैन्युफैक्चरिंग assessee and you are acquiring new plant and machinery during the previous year, routine depreciation, in that additional 20% depreciation is allowed on new plant and machinery for that year only, first year के लिए. हाँ, पांचवें एज कंसेप्ट, if it is used for 180 days or 120, if it is less than 170, 10%. Okay, point is what, अभी पिछले प्रॉब्लम में प्लांट एंड मशीनरी तक किया नहीं है, इसी प्रॉब्लम में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, आंसर मैच करेंगे. और इसी के अंदर एज्यूमिंग कि अगर ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होता तो वो भी एक कर लेते साथ साथ में. दैट इज द लास्ट पॉइंट ऑफ द डेप्रिसिएशन चैप्टर. ओके, अब उसके लिए मुझे आपको बताना पड़ेगा व्हाट आर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स. याद होगा हमने मैन्युफैक्चर, प्रोडक्शन, बिजनेस का डेफिनेशन देखा था. बिजनेस इनटू ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर. मैन्युफैक्चर इंक्लूड्स प्रोडक्शन आल्सो. ये प्रश्न बहुत बार खड़ा होता है कि क्या होटल वाला मैन्युफैक्चरर है कि ओनली ट्रेडर है कि सर्विस प्रोवाइडर है. एंड इफ अगर होटल्स आर मैन्युफैक्चरर तो वो लोग जो किचन के नवे इक्विपमेंट बनाते हैं या वो इंस्टॉल करते हैं तो क्या उनको एडिशनल 20% डेप्रिसिएशन मिलेगा? सर्विस प्रोवाइडर को नहीं मिलेगा. फिर से पॉइंट, 20% रेगुलर मिलेगा. ऐसा समझो कि हमारे यहाँ पर जो है नीचे पीछे सबवे भी है, बहुत सारे रेस्टोरेंट है, मेरे ख्याल से वहां पर कोई और एक भी रेस्टोरेंट भी है, लापिनोस वगैरह है. ओके, ऐसा समझ कर चलो कि ये रेस्टोरेंट्स है, या आपके यहाँ पर हैवमोर है जो होक्को हो गया है. ओके, उसका भी रेस्टोरेंट है. उन्होंने ऐसा समझो कि सब्सटेंशियल एक्सपांशन प्लान किया कि चलो किचन फिर से वेल इक्विप कर देते, पूरा खराब तोड़कर वापस से नया फर्नीचर, पूरा किचन बना. किचन में सारा इक्विपमेंट लगा, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट लगाई, इलेक्ट्रॉनिक चिमनी लगा दी, सब लगा दिया, नया फ्रिज लिया है, नया गैस स्टोव लिया, सब लिया है. अब वो मेरे पास यार आकर मुझे बोल रहे हैं कि सर मैंने 50 लाख का मैंने जो है ये फर्नीचर पूरा बनाया, यानी किचन का बनाया पूरा. तो मैं कहूंगा 15% डिप्रिसिएशन मिलेगा ही भाई, क्योंकि आप 15 वाले ही हो, आप 40 वाले तो नहीं हो. 50 लाख का 15% आ जाएगा, दैट इज योर 7.5 लाख. मैं बोलूंगा इस साल के लिए 20% भी और भी मिलेगा. 50 लाख का 20%, 10 लाख. बॉस 10 लाख पीएनएल के डेबिट में एडिशनल. क्वेश्चन ये है कि वेदर वो मुझे पूछेंगे सर मैं मैन्युफैक्चरर में आता हूं कि नहीं, तो मैं क्या जवाब दूंगा? आ जाएंगे, पैसा मिल रहा है तो आ जाएंगे, है ना? नहीं, बट यू हैव टू गिव द आंसर whether he falls in the manufacturing definition. आने जाते हो, कभी सोचा नहीं है कि मैन्युफैक्चरर है कि नहीं है? हाँ, पनीर टिक्का देखा जाए तो मैन्युफैक्चर कर रहा है ना. पनीर ला रहा है, बाद में जो है वो टमाटर ला रहा है, उसको मिक्स कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है, बना कर दे रहा है. नाउ कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड्स ही है ना. बराबर है, आप लोगों ने ये डेफिनेशन उस दिन दिया था. हाँ, तो फिर अगर वो जो है मैन्युफैक्चरर अगर है तो फिर सभी जगह पर पनीर टिक्का मिलता है, कॉमन ही चीज मिलती है, तो फिर कॉमन चीज के लिए मैन्युफैक्चरर कैसे हो गए? सभी जगह पनीर टिक्का मिलता है ना. हाउ विल यू प्रूव कि ये रेस्टोरेंट वाला मैन्युफैक्चरर है? चलो जाने से पहले ही बता देता हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं तो खाना नहीं पचेगा आप लोगों को फिर बाद में. इट इज वेरी सिंपल वन. देखो, हर एक का रेस्टोरेंट में आइटम्स कॉमन होती है. नहीं, रेट अलग होती है, बात अलग है. टेस्ट में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, लेकिन इंग्रेडिएंट सेम है. कोई थोड़ा सा राइस ज्यादा डालता होगा, कम डालता होगा, मसाले में जो कुछ भी डिफरेंस आता होगा, दैट इज व्हाट द डिफरेंस. ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? अगर मुझे समझो कि रेस्टोरेंट वाले को ट्रीट करना है को मैन्युफैक्चरर है, मैंने कुछ नहीं, उसका मेनू कार्ड मंगाना है, मेनू कार्ड देखना है. अब ऑब्जर्व करो क्या होता है, स्नैक्स, स्टार्टर्स, सूप्स, खाना. हमेशा उसके अंदर जब आप देखोगे मेन कोर्स में लास्ट होता है, दैट इज योर रेस्टोरेंट स्पेशल. वो सबसे भंगार होता है. नेवर ट्राई इट. कुछ कहा कोई मंगाता ही नहीं है, फिर भंगार होता है, लेकिन शेफ स्पेशल.
our restaurant special. सर हम ये करते हैं, हम यूनिक करते हैं, इसलिए मैन्युफैक्चरर है. द लेबल ऑफ द मेनू कार्ड में उससे एक पॉइंट से यू आर प्रूव दैट यू आर मैन्युफैक्चरर. खत्म. डेप्रिसिएशन 20%. કેટલી નાની વસ્તુ હશે તમે કોઈ દિવસ ઓબ્ઝર્વ જ નથી કરી. Okay? આ લકીલી મને ચાન્સ મળ્યો, હું ઓબ્ઝર્વ કરું. ऑलवेज आई ट्राई टू ऑब्जर्व इट कि ये दिया क्यों है, ये क्यों अलग कर रहा है. कोई मंगाता ही नहीं है. पूरे रेस्टोरेंट में जाकर बैठकर देखो, कोई मंगाएगा नहीं. फिर भी बॉस आपने लिखा है क्योंकि यू वांट कि मैं मैन्युफैक्चरर में आऊं. डन. नेक्स्ट लेक्चर वी विल सॉल्व विद दिस प्रॉब्लम एंड वी विल क्लोज विद द डेप्रिसिएशन. फर्दर नेक्स्ट लेक्चर हम लोग फिनिश कर देते अवर एक्सपेंसेस की लिस्ट भी अब. ओके डन. वाचीने आवजो बेटा बधाई लोग. सर ये रेट दे देगी एग्जाम में? हाँ एग्जाम में रेट वैसे तो देते हैं, नहीं दिए तो जनरल बेटा याद रखना है. देखो बिल्डिंग का तो याद हो गया. प्लांट एंड मशीनरी में थोड़ा लॉजिकल लगाना है कि कैसे वो 15% या 40%. 40 वाले याद कर लो, 15 बाकी के ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे. चलो बेटा पढ़ाई कर कर आना. नेक्स्ट लेक्चर हम लोगों के लिए विल फिनिश विद दिस एक्सपेंसेस ऑल्सो.